Jai Hind everyone. Myself Anmol Jain, working as an assistant professor in IT department at Ajay Kumar Garg Engineering College. Today we are going to discuss a very important topic, which is the requirement of the current era and the current society, that is the universal human values and professional ethics. So what is the meaning of the universal human values? Let's understand what is the meaning of the human values, then we will move to the universal. So human values are the requirement to understand that why we are here, what is the purpose of our life, right? So is the purpose of my life is to live alone only for me, or to live with others also? The second part of the topic is the professional ethics, that are we here to follow the ethics or the professional ethics? Am I having some problem with others, or any other is having some problem with me? If there is, then we are not following the professional ethics, right? So we will discuss certain issues that we are facing in current days, in current generation, right? The contents of these PPTs are borrowed from the workshop of the Universal Human Values, and I would like to special thanks to Professor Gaur Rajul Asthana ji, Professor GP Bagaria ji, who developed such a novel and transformational knowledge content. Here it is my sincere effort to put my views for the importance of this topic. So we will discuss the human values or the need of the course, why we require this course here today. That is the need of the course, that is for the number one at the level of the individual. For my individual, why it is required? अगर मैं अपने आप की बात करूं तो इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की क्या जरूरत है? So we can see in the present days that most of the students or most of the people or employees are facing these problems. Number one, the rising problems of depression. Problem of depression. Why the problem of depression is there? We can see this problem of depression. Why? So you can see that the problem of depression is rising day by day, just because the overthinking or over expectation from us. हमें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा चाहने की इच्छा हो गई है, इस वजह से हम क्या करते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द रिलेटिव कॉन्फिडेंस, that we call as the psychological disorder. We are not able to recognize us, that what are my skills, what I can do, because we are living in a relative life. Every time I am comparing myself with another. हमेशा हम अपने पड़ोसी से, अपने साथी से क्या करते रहते हैं, उसको कंपैरिजन करते रहते हैं. और कोई भी दो व्यक्ति इस विश्व में, यूनिवर्स में सेम नहीं है, सबका अस्तित्व अपना अपना अलग है. तो हम किसके साथ अपना रिलेटिव कर रहे हैं, किसको हम अपने सापेक्ष कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वेन एवर वी फाइंड ए पर्सन हु इज मोर कैपेबल, मोर स्किल, मोर वैल्यूज फ्रॉम विद मी, आई गेट और आई लूज माई कॉन्फिडेंस. Next is the psychological order. Just because of this relative confidence, sometimes we become the victim of the psychological disorder, that we are not able to recognize our skills and values and strengths. And when we compare our life with others, we may lose the confidence, and just because of the losing of the confidence, we reach to the level of the suicides. आत्महत्या करने के बारे में हम सोचने लगते हैं. बड़ा ही कठिन विषय है कि आज की जनरेशन अगर कुछ अचीव नहीं कर पा रही
तो वो एक शॉर्टकट ढूंढ लिया उसने कि हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। वो उस चीज को भूल जाता है कि ये मानव जीवन हमें किस लिए मिला और किस पर्पस के लिए मिला, कैसे मिला। Forget about it that how we achieve this human life, and just because of not attaining a certain skill, values or prosperity और पैसा, हम क्या करते हैं? We commit suicide because this is a shortcut. Problem of the stress. Mostly people are passing through this problem, this stress. Why this stress? क्यों ले रहे हैं हम स्ट्रेस? Because हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को कई जगह इन्वॉल्व कर रखा है कि मैं ये ऐसा भी कर लूं, मैं वैसा भी कर लूं। Overburdened. So this is the scene of the overburdened, and we are overburdened, and everyone is having their deadlines. सबके अपने कुछ कमिटमेंट हैं, and everybody is expecting to complete your commitments, and we are not able to achieve all the commitments at a time because we are having limited time, enough same time. So we are not having a timetable management, so we get into the state of stress. Insecurity. आज के सोशल मीडिया के युग में हम सभी लोगों को एक हमेशा चिंता रहती है। We all are always worried with the problem of the insecurity. Insecurity in sense, कहीं मुझे कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मेरी बात को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मेरे बिहेवियर को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। तो उस चीज की इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी बैंक अकाउंट्स की रहती है कि कहीं मेरा पासवर्ड लीक ना हो जाए। सो दीज आर दी प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम। साइकोमैटिक डिसीज, we are feeling certain problems with the psychomatic that we will discuss. Next is the loneliness. न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, तो जो समय है वो क्या है अभी? सिंगल चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स, 2 किड्स। अगर आपके परिवार में एक ही बच्चा है, if you are only having a single kid, then always there will be the problem of the loneliness for your kids. वो अपनी बात किससे शेयर करेगा? जब उसका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन नहीं होंगी, तो वो अपनी बात किससे शेयर करेगा? और उस अकेलेपन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जाती। So this is the hot issue for the current era, that we should understand what problems we are facing at individual level. Next, the problem at the state or the level of the family. At the level of the family means today we are facing or seeing that families are breaking into nuclear families. We are not preferring the joint families where we get support from our parents, from our elders, लेकिन हमें क्या है? हमें एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम लोग रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? दूसरों के विचारों से आजादी, कोई हमें रोक टोक ना हो, हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर हमारा किसी का कोई रोक टोक ना हो, कोई इंटरप्ट ना हो उसमें। इसलिए हम किसकी तरफ जा रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम विद द फैमिली इज द मिसट्रस्ट, विश्वास का अभाव।
हम अपने बड़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने साथ वालों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो हमारे सापेक्ष हमसे स्किल वैल्यूज या प्रॉस्पेरिटी या पैसे में ज्यादा है या हमसे कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी रिलेटिव। तो हमारा विश्वास का अभाव है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन जो हमेशा से चलता आया है। देयर इज ऑलवेज ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर जनरेशन, इसको हम जनरेशन गैप के नाम से देते हैं। हमारे पेरेंट्स कुछ हमें वैल्यूज सिखाते हैं तो हम कहते हैं आजकल के जमाने में ये सब चीजें नहीं चलती। हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा यूज या मिस यूज या ज्यादा आप सोशल मीडिया को यूज करते हो देन दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन हम कहते हैं कि ये तो आजकल चलता है, इसमें तो कोई हमें हार्म है नहीं क्योंकि हम तो अपडेट रहते हैं इससे। लेकिन अपडेट रहना एंड एक्सेस ऑफ यूज बोथ आर डिफरेंट और द मिस यूज इज डिफरेंट। तो वो हमको ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट आता है अपने बड़ों से। इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, परिवार में भी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी की भावना है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। जो समाज की एक अभिशाप बन चुकी है समस्या, वो है डाइवोर्स। डाइवोर्स जैसी समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। आजकल के समाज में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। डाइवोर्स की समस्या क्या, इश्यू क्या है? हस्बैंड वाइफ दोनों ही कैसे हैं, ओवर एम्बिशियस हैं। दोनों की अपनी बहुत बहुत इच्छाएं हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों को बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, दोनों को अपना एक स्टेटस सिंबल बनाने की इच्छा है। और जब दोनों बराबर की चीजें आती हैं, दोनों का अभिमान सामने आ जाता है, तो हम किस स्टेज पर पहुंच जाते हैं? डाइवोर्स की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जो एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट इज द डॉरी टॉर्चर्स। डॉरी टॉर्चर्स आजकल के समाज में डॉरी, दहेज प्रथा, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हर फैमिली की। आजकल अगर हम बात कहें तो दहेज प्रथा का रूप चेंज हो गया है। पहले जब कोई शादी की बात करने आते थे तो लेन देन की बात होती थी, जो एक अभिशाप रहा है, परंपरा रही। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें डॉरी में, पैसे की कोई बात करे या ना करे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर सामने आता है, लड़का हो या लड़की, पैकेज क्या है? सो पैकेज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द डॉरी। अगर लड़की जॉब करती है तो हम शादी करेंगे, अगर लड़की जॉब नहीं करती है तो हम शादी नहीं करेंगे। तो एक ही स्टेटस सिंबल बन गया और उस स्टेटस सिंबल की वजह से किसी दूसरे रूप में हम डॉरी से अपने साथ वाले को टॉर्चर कर रहे हैं। फैमिली फ्यूड्स, परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन फैमिली फंक्शंस, आप देखें अगर इस ग्राफ में, सो मैक्सिमम खर्चा जो हम अपने सैलरी का कर रहे हैं, दैट इज ऑन फूड, वेस्टफुल एक्सपेंसेस।
आवश्यकता से अधिक हम अपना खर्चा किस पर कर रहे हैं? खाने पीने की चीजों पर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट दैट इज द रेंट। हमने अपनी लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ा रखी है। अपनी कमाई से ज्यादा हम अपना पैसा किस पे खर्च कर रहे हैं? या तो खाने पीने पर या रेंट पर। देन थर्ड इज द मिसलेनियस, जिसका हमें पता भी नहीं हम किस चीज पर खर्च करें। वो जनरली हमारा जो खर्चा होता है वो दिखावे पर होता है। शो, अपनी प्रेजेंस को शो करना, अपने आप को शो करना, उस पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। और वो सब क्या है? हमारे वेस्टफुल एक्सपेंसेस हैं। अगर बात करें जो रिक्वायरमेंट की है, तो हमें अपनी एजुकेशन पर पैसा खर्च करना चाहिए, नेसेसरी है। क्लॉथिंग पर भी नेसेसरी है, बट इट शुड बी रिक्वायर्ड, जितना आवश्यकता है उससे। वो हमें आवश्यकता का निर्धारण करना पड़ेगा। इन वेस्टफुल एक्सपेंसेस को रोकने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करना पड़ेगा। अगर हम ये निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, सुसाइड, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, इनसे ग्रसित रहेंगे। क्योंकि अगर हम पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आएंगे। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ द सोसाइटी। एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी क्या प्रॉब्लम्स है? ग्रोइंग इंसिडेंसेस ऑफ टेररिज्म एंड नक्सलिज्म, आतंकवाद की प्रॉब्लम, क्षेत्रवाद की प्रॉब्लम, नक्सलिज्म, डिवाइड एंड कॉन्कर, जीतो, डिवाइड करो और राज करो। कैसे? प्यार से नहीं तो टेररिज्म। टेररिज्म वही नहीं है जो एक देश के आतंकवादी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाए या उन पे कुछ अटैक करें, वो यही टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म तो हमारी सोसाइटी की लेवल पर भी है। हमें अपने पड़ोसी से भी कभी कभी डर लगता है कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। अगर मैं इस भावना के साथ चल पा रहा हूं कि मेरे अपने पड़ोसी से मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने कलीग से डर लग रहा है कि ये मुझे अटैक ना कर दे, तो वो भी एक टेररिज्म है, आतंक है। राइजिंग कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म की जो समस्या बढ़ती जा रही है, दैट इज अ प्रॉब्लम। स्प्रेडिंग कास्टिज्म, जातिवाद, छोटा बड़ा, इस जात का है, उस जात का है, उस टाइप की एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के लेवल पर। हम कभी कभी अपने साथ के लोगों को ही दुर्भावना से व्यवहार कर देते हैं कि ये इस कास्ट का है या उस कास्ट का है। बटे हुए हैं कास्ट्स में, एक कॉमन बात ना करके हम अपने कास्ट की भलाई या दूसरे की बुराई, उसमें दोष निकालना शुरू कर देते। रेशियल एंड एथनिक स्ट्रगल, वार्स बिटवीन नेशंस, देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमें अपनी सीमाएं बढ़ानी है, हमें अपना आय का स्रोत बढ़ाना है, हम राज करना चाहते हैं। सो देशों के बीच में भी क्या हो रहा है? युद्ध की विडंबना, युद्ध की प्रॉब्लम आ रही है। अटेम्प्ट्स ऑफ जेनोसाइड, मेरा एकाधिकार हो, जैसा मैं हूं वैसे ही सब लोग हो जाएं, मेरी बात सब सुने, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से नहीं चलते हो तो हम आपका क्या करेंगे? जेनोसाइड, नरसंहार करेंगे एक टाइप के लोगों का। जो मेरी बात नहीं मानेगा उनको हम समाप्त कर देंगे। फियर ऑफ न्यूक्लियर एंड जेनेटिक वारफेयर, हर देश को इस बात का भय रहता है
कि पड़ोसी देश कहीं उस पर अटैक ना कर दे, न्यूक्लियर वार ना कर दे। तो देश भी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं हम पर कोई न्यूक्लियर वार ना कर दे, हमारे देश को और हमको खत्म ना कर दे। तो ये कैसी प्रॉब्लम है? सोसाइटी के लेवल की प्रॉब्लम है। So you can see here is a problem of the terrorism, problem of the casteism, racism, आतंकवाद फैला रहे हैं, लड़ाई झगड़े, वार ऑफ नेशन आजकल जो चल रहा है यूक्रेन और ब्रिटेन का, कितनी नरसंहार हुआ उसमें, कितना ह्यूमन लॉस हुआ, लेकिन अपनी ईगो की वजह से, अपने विचारों के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इतना नुकसान हमने सहन किया। जेनोसाइड्स, एक तरह के लोगों की हत्या कर देना एक साथ। फियर ऑफ न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वार एक बार में सब खत्म। नेक्स्ट, द नीड एट द लेवल ऑफ द नेचर, जहां हम रह रहे हैं, जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, उसको अनदेखा करना, उसका मिसयूज करना, ये मान के चलना कि ये नेचर केवल मेरे लिए है, इस भावना से उसका उपयोग करना। जबकि भावना क्या होनी चाहिए कि ये जो नेचर है ये तो भगवान ने मुझे दिया है यूज करने के लिए, इसका संवर्धन करने के लिए, और इसका संवर्धन करके, इसको पोषित करके अपनी आगे वाली जनरेशन को सुपुर्द करने के लिए। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जितनी भी प्राकृतिक संपदा हमें मिली है ये केवल मुझे मेरे उपयोग के लिए मिली है और मैं इसका भरपूर उपयोग करूंगा और इसको खत्म कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी विचारधारा बन गई है कि मैं हूं और मैं इसका उपयोग करूंगा और इसका आगे उपयोग करने वाला कोई है नहीं, जबकि ये गलत सोच है। सोच क्या होनी चाहिए कि इसका तो मैं उपयोग करूंगा और इसके संवर्धन के लिए, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए मुझे कुछ काम करना है और अपलिफ्ट करके इसे मुझे नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये हमारी अपनी धरोहर नहीं है, ये धरोहर किसी दूसरे की है जिसे हमें आगे पास ऑन करना है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एसी हर जगह आजकल एसी चल रहे हैं, जरूरत है या नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं। बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं एसी के, एयर कंडीशन बनाने के लिए। पेड़ काटे जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमर्शलाइजेशन। शहरीकरण की वजह से हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। उसकी वजह से किसकी प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। वाटर, एयर, सॉइल, नॉइज एटसेट्रा, पॉल्यूशन। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसका जो रेसिडुअल है वो नदी नालों में बहाया जा रहा है बिना सोचे कि ये कहां जा रहा है, किसको इफेक्ट कर रहा है। उससे हमारी पीने का पानी दूषित हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, कैसे कर रहे हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन, गाड़ियां चला रहे हैं। आजकल एक घर में जितने लोग उतनी गाड़ियां। अगर आप रोड पर चले जाएं तो हर कार में एक इंडिविजुअल की बात है, हर कार में एक। ऐसी अगर व्यवस्था बने कि एक कार अगर 4 लोग की है तो उस कार में मिनिमम 4 लोग तो ट्रेवल करें, तो एयर पॉल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज करें तो एयर पॉल्यूशन हमारा काफी कम हो जाएगा। तो इस संबंध में ना सोच करके हमें अपनी सुविधा के लिए हमने अपनी सबने एक अपनी कार, एक घर में एक बच्चा है तो उसकी अलग कार है, पापा की अलग कार है, मदर की अलग कार है, सबकी अपनी अलग अलग एक कार है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान अभी नहीं जा पा रहा।
सॉइल, अगर एक बार जल दूषित हो गया तो उससे मिलने वाली मिट्टी भी आपकी कैसी हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। नॉइज पॉल्यूशन, ट्रैफिक की वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी काफी बढ़ता जा रहा है। सो ये सारी प्रॉब्लम किसकी है, हमारी नेचर की है। रिसोर्स डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल ऑयल्स, मिनरल्स और मिनरल ऑयल्स की जो खाने हैं इनका हमने इतना उपयोग कर लिया है कि उनमें भी क्या होता जा रहा है, उनका डिप्लेशन, क्षय होता जा रहा है, कमी आती जा रही है। साइजेबल डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को खत्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट, ये मान के चल रहे हैं कि रहना ही है, शायद इनकी पेड़ों की जरूरत नहीं है हमारे जीवन में। और अगर आप धीरे धीरे अगर पेड़ कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगी, दिस इज द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की उत्पादन क्षमता, उर्वरक क्षमता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी तो हम कैसे तो अन्न उगाएंगे और क्या खाकर हम अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन हम सब ये इसलिए करते आ रहे हैं कि शायद केवल मुझे आज जीना है और इन सब का मैं उपयोग करके अपना जीवन जी लूं, बाकी आगे मुझे इसमें से किसी को कुछ नहीं देना। इस सोच के साथ हम लोग इन चीजों का दोहन कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। सो दीज आर दी प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, resource depletion of layer, pollution of different kind, loss of fertility of soil। किसान परेशान है इस चीज से क्योंकि उसकी आजीविका पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट काट कर हम उनका समतलीकरण कर रहे हैं, उनका शहरीकरण कर रहे हैं, उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनको बेच रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। Now this is the sum up. If I sum up here, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, प्रॉब्लम एट फैमिली लेवल, प्रॉब्लम एट सोसाइटी लेवल एंड प्रॉब्लम एट नेचर लेवल। ये चार अलग अलग विधाओं में हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इन चारों को हम कैसे व्यवस्थित करें कि हमारे जीवन के जीने में आसानी हो। सो आउटकम ऑफ दिस कोर्स विल बी, वी विल बी एबल टू फाइंड हार्मनी इंडिविजुअल। अगर हम इस कंटेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हार्मनी इन इंडिविजुअल। फायदा क्या है इसका, रिजल्टिंग इन हैप्पीनेस एंड ए फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी and living with absolute confidence. Harmony in family, resulting in mutual fulfillment and relationship and prosperity in family. Harmony in society, resulting in trustful, undivided, universal society. Harmony in nature, understanding the inherent coexistence, resulting in being in harmony in nature. So what is the meaning of the harmony? To live as per the requirement of others also. मैं भी जीऊं, तुम भी जियो। कैसे? हार्मनी वर्ड जो है वो हारमोनियम से रिजेंबल करता है। रिजेंबल कैसे करता है? अगर आप हारमोनियम में देखें, देयर आर डिफरेंट कीज इन दिस कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में बहुत सारी कीज हैं और हर की का अपना एक फंक्शन है, एक सुर है। अगर हम इस हारमोनी की बात करें, इस हारमोनियम की बात करें, अगर मैं एक की को प्रेस करता हूं और एक ही की को बार बार प्रेस करता हूं तो क्या मधुर संगीत आएगा? या अगर इसमें किन्हीं दो कीज को मैंने बार बार प्रेस करता हूं कि मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, तो क्या ये हारमोनियम हमें एक अच्छा संगीत दे पाएगा? शायद नहीं।
लेकिन अगर हम व्यवस्था में जीते हैं, एक दूसरे के साथ जीने की इच्छा रखते हैं, तो जो हारमोनियम के प्लेयर्स हैं, इनको बजाने वाले हैं, वो अपनी फिंगर से कब किसको कितना प्रेस करना है, कब किसको किसके बाद प्रेस करना है, उनमें एक सामंजस्य बना दें। उसमें अगर हम एक सामंजस्य बना दें तो यही हारमोनियम हमारा क्या बन जाता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। क्या बन जाता है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और अगर ये हारमोनियम में नहीं है तो यही हारमोनियम हमारा क्या बन जाता है, एक नॉइज इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज ए सेट एग्जांपल कि मैं म्यूजिक चाहिए लाइफ में या नॉइज चाहिए। अगर हमें लाइफ में म्यूजिक चाहिए तो हमें इन कीज की तरह बिहेव करना है, किस की कितनी जरूरत है, और हर की को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में जीना है। अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो आप अच्छे से संबंध पूर्वक जी पाएंगे, आपस में मधुर संबंधों के संग जी पाएंगे। और अगर हम अपनी अपनी रेस में लगे रहेंगे, देन वी विल क्रिएट द प्रॉब्लम एंड आवर लाइफ बिकम्स नॉइजी। तो ये ही इंस्ट्रूमेंट हमारा कैसे काम करेगा और ये हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, नॉइजी। मधुर की जगह कैसी हो जाएगी, कड़वी। आपस में हम सब कैसे रहेंगे, एक दूसरे से बिगड़े हुए भावों के साथ रहेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट वी शुड लिव इन हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर, राइट? So this is all about this class. We will discuss the harmony in individual, harmony in family, harmony in society, and harmony in nature in next class. Thank you.